Friends, Mr. Narendra Modi and the BJP's naked dictatorship is manifest in full force in Gujarat. The BJP is running what might appositely be called an arbitrary, high-handed, vindictive, victimizing and harassing state apparatus in Gujarat. Modi's word is the law. If he raises his eyebrows with disfavor, somebody's fundamental rights must be crushed. If Modi sneezes in Gujarat, the BJP must run helter-skelter in Delhi, whether to disrupt Parliament or to carry delegations to the President of India. They feel obliged, compelled to do so. The BJP and Mr. Modi have thrown all democratic spirit, all republican norms to the winds. What pervades this BJP-ruled state is the ethic of intolerance, a narcissistic megalomania, a vendetta-filled hatred against all those who dare to voice democratic opposition. Friends, I wanted to introspect, to consider these facts. In June 2006, Sanjeev Bhatt was cited as evidence or as witness by Zakia Jafri in the allegation she made against Modi and 61 other persons. This is in 2006, this man Bhatt was cited. In November 2009, this Sanjeev Bhatt, and we are not concerned about Sanjeev Bhatt or an individual. We are talking of the institutional apparatus, the approach of the BJP. This is only an example, and there are many, many more examples. In November 2009, the SIT examined him under Supreme Court orders, and he made the detailed allegation that in February 2002, 27th February, at the height of the Godhra issue, Mr. Modi gave illegal instructions and illegal orders regarding mobs in Ahmedabad. He filed an affidavit, and then again he filed a similar affidavit in the High Court of Gujarat, and this is very important, where he gave an affidavit in the Pandya case. And an affidavit, the allegation, and we are not concerned about the truth or otherwise. The allegation in the affidavit is that Harin Pandya murder case, there is great and direct complicity of politicians and public figures in Gujarat. I sent the report to Mr. Amit Shah, Home Minister. Amit Shah asked me to destroy it, and ultimately the Home Ministry under Amit Shah buried it deep. That's an affidavit in the High Court. The point is not the correctness or otherwise of such affidavits. The point is not about Sanjeev Bhatt or anybody else. The point is that anybody who dares to raise his voice, some pretext is found to victimize, harass, to act with vendetta. Can you imagine? It would be laughable if it was not tragic. A police sub-inspector is asked to file a complaint against an IPS officer. And that too now, after all this has happened. Why not before? About fabrication of evidence in old cases. Why was this complaint not filed earlier? He is now charged with sections of the IPC which were not there in the FIR. His family has expressed a bona fide apprehension that he will be liquidated.
And we can tell you from this forum that if anything untoward happens, there is no doubt as to who will be responsible for that untoward incident and damage to life or property. But Mr. Modi and the BJP more particularly has a very respectable lineage, a consistent pattern of vendetta-filled action. I have several names, I'll give you only a few. Have you forgotten Kuldeep Sharma, additional DG? The man who was tried to be arrested under a 25-year-old incident because he gave a report against Amit Shah in 2005. There was additional DG, not a small officer. Have you forgotten CN Srikumar, who gave evidence of the Godhra riots? A new inquiry was started against him. There are many more examples. There is Rajneesh Rai, who gave evidence in the encounter case of Banjara. He and his wife were given punitive transfer. His wife was collector. Rahul Sharma, many examples are there. The real point, friends, is that the BJP gives lectures regarding citizens' rights. It gives lectures about democratic spirit. In actual fact, they always practice the opposite of what they preach. In a grand inversion of Voltaire, as you know, Voltaire said, "I will defend to death your right to disagree with me." In a grand inversion of that, the BJP and Modi says that we will ensure that we crush your right of democratic dissent. They speak, nobody can speak in that state unless they speak his master's voice. And the master is the political party in power, the BJP, or the Chief Minister in power, Shri Modi. This is narcissistic megalomania at its worst. मित्रों, बीजेपी की गुजरात में और बीजेपी के मुख्यमंत्री की गुजरात में एक जो आप विशाल स्वरूप लिया है, जिसने तानाशाही देख रहे हैं आप, वो मैं समझता हूँ अद्भुत है, किसी और प्रदेश में नहीं दिखेगी आपको। सत्ता की ताकत के नशे में चूर हैं बीजेपी और उनके मुख्यमंत्री। अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता। एक पुलिस कांस्टेबल की कंप्लेंट पे एक आईपीएस ऑफिसर को अरेस्ट किया जा रहा है। अगर यही अंदाज रहा तो पूरी सर्विस में एक जूनियर ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर के प्रति अविश्वास पैदा करने की पूरी प्रक्रिया स्थापित की जा रही है। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि सद्भावना के नाटक 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलते। सद्भावना की कोई वहाँ यात्रा नहीं है, वहाँ प्रतिशोध की भावना की यात्रा है। अगर मुख्यमंत्री की भ्रिकुटी, अगर उनकी भौवें थोड़ी भी उधर जाएं तो एक कहर ढा जाएगा जिस दिशा में उनकी भ्रिकुटी उठेगी। किसी न किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होगा। ये संस्कार और संस्कृति है, ये प्रवृत्ति है उस चीफ मिनिस्टर की, ये प्रवृत्ति और संस्कार और संस्कृति है इस पार्टी की। अगर मुख्यमंत्री उस प्रदेश के छींक दें तो बीजेपी बाध्य हो जाती है कि दिल्ली में सब कुछ अवरुद्ध होना चाहिए, संसद भी अवरुद्ध होना चाहिए और डेलीगेशन जाना चाहिए राष्ट्रपति की तरफ। ये एक कोई नई प्रक्रिया नहीं है, हमें श्री संजीव भट्ट से कोई सरोकार नहीं है, वो एक उदाहरण है। वो एक बहुत बड़ी बीमारी का जो विद्यमान है गुजरात में सब जगह, उसका उदाहरण है। आपको कुछ तथ्य पता हैं, लेकिन देश को वो तथ्य वापस याद दिलाना आवश्यक है। ये व्यक्ति का नाम साक्षी के रूप में जाफरी परिवार ने जून 2006 में 5 वर्ष पहले दिया था, भट्ट का। एसआईटी जो उच्चतम न्यायालय के आदेश के अंतर्गत तहकीकात की, तो उच्चतम न्यायालय के आदेश के अंतर्गत उन्होंने, एसआईटी ने इस व्यक्ति का वक्तव्य पूरा उतारा और वो वक्तव्य मुख्य रूप से था कि 27 फरवरी 2002 गोधरा के कांड के दौरान
श्री मोदी ने गैर कानूनी आदेश दिए उस घटना के साथ डील करने के लिए के विषय में। इसी व्यक्ति ने बाद में एक एफिडेविट दिया है गुजरात के उच्च न्यायालय में, लिखित। आप जानते हैं हलफनामा कानून में बहुत वजन रखता है कि हरेन पांड्या की मृत्यु के केस में उनकी तहकीकात के बाद उनके पास स्पष्ट तथ्य हैं कि राजनीतिक और बड़े नाम उसमें मिले हुए हैं। और जब ये रिपोर्ट भेजी उन्होंने गृह मंत्रालय को, गुजरात के अमित शाह जिसके मंत्री थे, तो उनको कहा गया कि इसको दबा दिया जाए, और अंततोगत्वा उस मंत्रालय ने उस रिपोर्ट को दबा दिया। इस प्रकार के कोई भट्ट से मतलब नहीं है, इस प्रकार के उदाहरण गुजरात में आपको कई मिलेंगे। उनकी चाल, संस्कृति, चेहरा, पहचान इस प्रकार के उदाहरणों से भरी है। अगर कोई आवाज़ उठाए, सत्य बोले, उनके विरुद्ध बोले, तो उसको हैरेस करना है, प्रतिशोध की भावना से उसको हैरेस करना है। आप कुलदीप शर्मा को शायद भूल गए हों, एडिशनल डीजी रैंक का व्यक्ति जिसने अमित शाह के विरुद्ध 2005 में लिखित रिपोर्ट दी, उसको एक 25 साल पुराने केस में आरोपित बनाया गया, जो तुरंत उच्च न्यायालय गुजरात ने स्टे कर दिया। आप भूल गए हैं क्या CN श्री कुमार को, जिन्होंने हलफनामा दिया गोधरा के विषय में, और एडिशनल डीजी के रैंक के वो भी थे। अभी हाल में उनके विरुद्ध एक पुरानी इंक्वायरी शुरू की गई है। रजनीश राय, जो बंजारा एनकाउंटर केस के विषय में जिन्होंने दिया एविडेंस, वो और उनकी बीवी को दंड के रूप में ट्रांसफ़र, स्थानांतरण किया गया। बीवी उनकी कलेक्टर हैं। इस प्रकार के कई और उदाहरण हैं। राहुल शर्मा का उदाहरण है, भावनगर SP जो थे। लेकिन ये उदाहरण से हमें मतलब नहीं, व्यक्ति विशेष से हमें मतलब नहीं। कांग्रेस को जो मतलब है वो इस पूरी बीमारी से है। बीमारी ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से कोई भी आवाज़ उठाए जो उस प्रदेश के तानाशाह मुख्यमंत्री की आवाज़ से मेल नहीं खाता है, तो उस व्यक्ति की आवाज़ को कुचल दिया जाएगा। ये बीजेपी का सही चेहरा है। वहाँ पर सद्भावना का नाटक अगर चला है तो 2 दिन भी नहीं चला। सद्भावना कहीं नहीं है, प्रतिशोध की भावना है सिर्फ। अगर, और ये विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान होता है। अभी 3 दिन पहले की बात है, मैं जिक्र करना भूल गया, DCC के अध्यक्ष, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के, एक हुंबल करके व्यक्ति हैं, उनका मॉडल विलेज है जिसको कई इनाम मिले हैं, कई अवार्ड्स मिले हैं। और उस विलेज, उस गांव के सरपंच उनकी पत्नी हैं। उन्होंने चेक द्वारा डोनेशन लिया एक मॉडल विलेज बनाने के लिए, काम, विकास के काम करने के लिए। उसके ऊपर तहकीकात शुरू की कई वर्षों बाद मोदी सरकार ने। तहकीकात में ये जोर दिया कि सिर्फ जो डोनेशन चेक से लिया वो नहीं, उसका खर्चा कैसे हुआ वो भी दिखाइए। दोनों पक्षों में रिपोर्ट सही आई कि डोनेशन भी चेक से आया और खर्चा भी पूरा विकास के लिए हुआ। उसके बाद उनको अभी हाल में 2 दिन पहले अरेस्ट किया गया। किस बात पे? कि जो हस्ताक्षर हैं वो आरोपित रूप से आरोप लगाया गया है कि उनकी बीवी के नहीं, उनके हस्ताक्षर हैं। इस ग्राउंड उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो राजनीतिक व्यक्ति हो, प्रशासनिक व्यक्ति हो, अगर किसी की आवाज़ दबानी है तो इसमें बीजेपी माहिर है। और यहाँ दिल्ली बैठ के आपको लेक्चर देती है, कभी लोकपाल में, कभी मानव अधिकार में, कभी मूल अधिकार में नागरिकों के। तो मैं अपनी बात अंत करना चाहूँगा उस शायर के शब्दों द्वारा कि बीजेपी और मोदी का रवैया बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि शायर ने कहा कि काट कर ज़ुबां मेरी मुझसे वो यह कहता है, अब तुम्हें इजाज़त है हाले दिल सुनाने की।